Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the third lecture of chapter number 4 gases, and we have started with the gases chapter. We have discussed about the introduction of gases, KMT of gases. We are done with the kinetic equation of a gases, motion of particles. Yesterday we have discussed about the two laws, Boyle's law and Charles law. Today we are going to start with the next law, and that's Avogadro law. Plus we are going to drive a general gas equation, and further on we will see कि हमारे पास कितना टाइम बचता है, तो we will keep it in continuation. Fine. First of all, what is Avogadro's law? Avogadro's law we have studied in the first chapter. Again, it is repeated. It is going to be repeated today. It states that equal volume of all the gases at the same temperature and pressure must contain equal number of molecules, and this is the representation. This is the representation of Avogadro law. Volume of a given mass of a gas is directly proportional to the number of moles. And let we have a look on the mathematical जो explanation होती है इसकी, उसके expression के ऊपर भी चलेंगे. Plus we will see formula type, how we can write it. As we all know that 1 mole of any gas, here we are mentioning nitrogen gas only, but it means कि we have any gas, it contains 22.4 dm cube, and these are the number of molecules which it contains. It is actually we have studied in the first chapter कि ये standard relationship होता है. Again ये हमारे पास चीज़ आ रही है, no matter whatever the gas you are using, you have a chlorine, you have oxygen, number of molecule will remain same, and the volume of dm cube will also be remain same. This is what Avogadro's law is. Fine. And the significance is Avogadro law can be applied to determine mass, volume and number of molecules of a gas, and इनके इंटर कन्वर्जन्स होती हैं. इनका हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत प्रैक्टिस की है, तो ये वही चीज़ आ रही है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं बाय यूजिंग Avogadro law concept of a molar volume we can apply, and it is written here the 1 gram molecule or 1 mole of a gas will have a, इसको इन्होंने वर्ड में एक्सप्लेन कर रहे हैं. नाउ विल हैव अ 22.4 dm cube at STP. द वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm cube at STP is called, this is called molar volume. And again they are showing the same representation, general representation of a mole with the volume and with the molecule, and the standard temperature is 0 degrees Celsius, and pressure has as 1 atm. Fine. So these are the things they are representing here. Here we have a example for Avogadro law, and we will calculate it because आ रही है हमारे पास, so हम छोड़ेंगे तो नहीं इसको. Calculate the number of molecules and atoms, number of moles, volume in dm cube of 10 gram of ammonia at STP. If you remember, हमें करना क्या है, हमें कौन सी चीज़ें मालूम करनी है. What we need to find the number of molecules or atoms, number of mole, volume in dm cube, and what we are given 10 grams of ammonia at STP. So first step is to convert this 10 gram into moles. Fine. Just convert 10 grams into moles. And ammonia, you have ammonia. The formula of ammonia is NH3. So N has a atomic mass 14 and hydrogen is 3, और उसको 3 को आप multiply 1 से करेंगे, so your answer will be 17. So molar mass चाहिए. Simple mass in gram, you have a 10 gram. Mass in gram is 10. And molar mass in gram is 10 and molar mass is 17. Simple, you will divide it with 10 divided with 17, so your answer is 0.588 moles. Why we are doing this? Because we are going to apply the molar relation with all the whatever we have to find. Fine. So these are the number of moles which we have calculated, 0.558. Now 1 mole of ammonia at firstly we have to calculate number of molecules and atoms. So we are going to apply the mole ratio between moles and molecules, because this is what we have. इसको मैंने आपको इसी तरीके से सिखाया. जो चीज़ मालूम करनी है उसके राइट हैंड साइड पे लिखिए. फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई द स्टैंडर्ड रिलेशन. व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रिलेशन? स्टैंडर्ड रिलेशन इज़ 1 mole of anything. अमोनिया कंटेन्स 6.02 exponential 23 molecules. So हमारे पास द molecules given are 0.558. तो simply you will multiply it with this and will divide with 1. So your answer will be 3.54 exponential 10 to the power 23 molecules. नेक्स्ट में वो कह रहे हैं फाइंड नाउ नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड कीजिए. नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, इसको नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे आप?
इसका क्या तरीका होगा, नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए आपने काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स आपके पास हैं कितने. इफ़ यू नो द फार्मूला ऑफ अमोनिया इज़ दिस, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ एटम्स यू हैव, वन, यू हैव अ वन नाइट्रोजन एंड यू हैव 3 हाइड्रोजन, सो टोटल आंसर इज़ 4. सो यू विल से कि आपके पास जो एक वो लगा रहे हैं कि आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स, इसको डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपके पास आए थे ये वाले, इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे. ठीक है, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स आए थे उसको आपने टोटल एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे. दैट वाज द सेकंड पार्ट. इन थर्ड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम इन डीएम क्यूब. फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम इन डीएम क्यूब. इट इज़ 22.4. सो आपके पास कितने वो थे मोल से आपने जो मालूम किए हैं उसके अंदर वॉल्यूम मालूम कर लीजिए. तो आपके पास ये देख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे कि क्या है जी. तो ये आपके पास आ रहा है, आंसर आएगा, इन्होंने दोबारा से मोल्स कैलकुलेट करके दिखाया है, सो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट अगेन. आपके पास सिंपल जो मोल्स आएंगे उसके लिए वॉल्यूम इन डीएम क्यूब आप मालूम कर लेंगे तो आपका आंसर जो है वो यही आएगा जो लिखा हुआ है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि वी हैव अ नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज़ द जनरल गैस इक्वेशन, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, जो हमने कल भी पढ़नी थी, लेकिन लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था इसलिए हम लोगों ने वो देखा नहीं था. तो इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन, इट इज़ वेरी ईजी. मैं इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसको समझाऊँ, मैं आपको पहले ख़ुद करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग बाद में हम देख लेंगे. सबसे पहले व्हाट वाज द बॉयज़ लॉ. बॉयज़ लॉ वाज अबाउट वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. Next we had Charles law. It was volume is directly proportional to temperature. And next we have studied right now volume and Avogadro law. These are the three gas laws जिनको आपने पीछे पढ़ा है. ठीक है, according to Boyle's, according to Charles, according to Avogadro's law. Now if I write it like this, volume is directly proportional to or inversely proportional to pressure and temperature and n. इफ़ आई वॉन्ट टू राइट इट लाइक दिस, सो आई कैन राइट इट. सही है, एक ही वॉल्यूम के साथ मैंने तीनों को लिख दिया. नाउ दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, एंड इफ़ आई वॉन्ट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, सो आई हैव टू राइट एनी ऑफ द कांस्टेंट हेयर. सो इस इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पर कांस्टेंट जो लगा रही हूँ आर लगा रही हूँ. इसको बस कांस्टेंट को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोई इसका रीज़न नहीं है. ठीक है, आर अपॉन पी इंटू टी इंटू एन, यही होगा. ठीक है, आर टी एन. और अब मैं क्या करूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे एक सिंपल फार्मूला चाहिए, तो अगर मैं इस पी को उठा के इधर ले जाऊँ तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास. मैं किसी और कलर से लिख देती हूँ, ब्लू से कर लेते हैं. पी वी इज़ इक्वल्स टू आर टी एन. ठीक है, यही आएगा आपके पास. ज़ाहिर है हम पी को उठा के इस साइड पे ले गए तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा पी वी इज इक्वल्स टू आर टी एन. पी क्या है, पी इज़ प्रेशर. व्हाट इज़ वी, इस पे देख लेते हैं. वी इज़ वॉल्यूम, पी इज़ प्रेशर, टी इज़ टेम्परेचर, n is number of moles and V is the volume of a gas. And what is R? R is a constant and this constant is known as general gas constant. ठीक है, सो ये जो आपके पास डेरिवेशन एक ड्राइव हुई है इसको कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन. बहुत ईजी सी होती है ये जनरल गैस इक्वेशन है. 2-3 मार्क्स की आती है पेपर में और ये आपने करनी होती है. ठीक है, अब देख लें आपकी इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ दिस इज़ इक्वल्स टू दिस, according to Charles law this, according to Avogadro's law this. What we will write all the things together. ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3. और जब हमने इक्वेशन 1 2 3 को कंबाइन किया तो यहाँ लिखा नहीं हुआ, तो लेकिन आप देख लीजिएगा कि उसको आपने इस तरह से लिखना है. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन लगाएंगे और इस NRT इन्होंने मतलब लिखने में क्या है, पी एन पहले लिख दें, टी पहले लिख दें, तो इन्होंने इस तरह से लिखा है NRT और इस पी को उठा के इधर लेके आए हैं, तो दिस इज़ योर जनरल गैस इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि वेयर आर इज़ कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट. दिस इज़ द नेम ऑफ दिस आर, इट इज़ अ जनरल गैस कांस्टेंट. ठीक है जी, और जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं कि अगर हम बात करें कि इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 1 दैन पी वी, अगर यही यहाँ पर n की नंबर ऑफ़ मोल्स की हम बात करते हैं कि इट इज़ इक्वल्स टू 1, सो ये इक्वेशन आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी पी वी इज़ इक्वल्स टू आर टी ऑब्वियसली. एंड इफ़ आई एम सेइंग कि आई हैव 2 काइंड ऑफ कंडीशंस और मैं कांस्टेंट को अलग कर लूँ, पहले तो ये देख लें, कांस्टेंट को मैं अलग कर लेती हूँ. पी वी अपॉन टी हमारे पास ये आ जाएगा. ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट को अलग करती हूँ. और अगर मैं कहती हूँ कि आई हैव 2 काइंड ऑफ कंडीशंस, ऑन वन कंडीशन आई हैव अ P1
the volume is this and the temperature is this and it is equals to general gas constant. For second part I have a this conditions चेंज हो गई, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो ये दोनों इक्वल किस चीज़ के हैं, कॉन्स्टेंट्स के हैं। तो जब ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, P1V1 अपॉन T1 इज़ इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। ये क्यों फार्मूला बनाया है हमने, बिकॉज अगेन न्यूमेरिकल करने हैं। और वंस क्या वन वाली वैल्यू क्या होती हैं, ये आपके पास इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं, और 2 वाली ओबियसली जो बाद में वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी वो आपके पास 2 वाली वैल्यू होंगी। तो ये आपके पास फार्मूला आता है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2 एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर द न्यूमेरिकल्स। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करते हैं। इसके अंदर होता क्या है, क्वेश्चन वही है, फार्मूला वही लगाएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं होगा क्या। एक्चुअली मैंने आपको कहा है कि आपके पास फार्मूला होगा ये वाला, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। सो हमें कुछ चीज़ें गिवन होंगी और कुछ चीज़ें हमें गिवन नहीं होंगी। जैसे आप हो सकता है आपको एक प्रेशर गिवन हो और आपको एक प्रेशर गिवन ना हो, दूसरा प्रेशर जो होगा जो गिवन नहीं होगा उसको हम STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम खुद रखेंगे, और वॉल्यूम नॉर्मली हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इसकी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, देखें। आइडियल गैस इक्वेशन enables us to calculate the effect of change in temperature and pressure on the volume of gas. One cannot compare volume unless they are stated at the same temperature and pressure. Gas volumes are usually compared at 0 degree Celsius or 273 Kelvin and 1 atm. These conditions are referred to as a standard temperature and pressure STP. So ये आपको बता रहे हैं कि STP क्या है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 273 केल्विन होता है। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर आपको T1 की वैल्यू कोई भी गिवन है और T2 की वैल्यू नहीं गिवन, तो T2 स्टैंडर्ड आप खुद अज्यूम करते हो और वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी तरह प्रेशर एक गिवन है, P1 गिवन है, P2 गिवन नहीं है, तो ये आप खुद एज्यूम कर लोगे कितना, 1 atm। ठीक है, ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। मैं एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ आपको, ये देखिए। आई थिंक ये आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 10 है, उसका ये न्यूमेरिकल है। अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज, इसको और जूम कर लेते हैं, होपफुली आपको नज़र आ रहा है। अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 1000 cm³ एट 57 डिग्री सेल्सियस। साथ साथ डेटा बनाते रहें। दिस इज़ V1 1000 cm³, this is T1, look at this 57 degrees Celsius, we will directly convert into Kelvin, and 723 mm of mercury. This is actually a pressure, and 723 here it is written P1। ठीक है, ये आपका P1 यहाँ आ रहा है 723 mm। अच्छा, याद रखिएगा कि जो 1 वाली वैल्यूज़ के जो यूनिट जिस यूनिट के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं, सेकंड वाला जो V है उसका जो वॉल्यूम आएगा वो भी cm³ में ही आएगा। फिर सिमिलरली यू आर यूजिंग mm ऑफ मरकरी। सो mm ऑफ मरकरी का स्टैंडर्ड जो होता है वो 760 mm होता है, ये फिक्स्ड है, यानी 1 atm इक्वल होता है 760 टॉर या 760 mm। ये mm और टॉर सेम होते हैं तो इसके बराबर है। तो अगर एक mm 723 यूज़ कर रहे हो तो जो दूसरा mm है वो 760 आपने खुद एज्यूम करना है, जो 1 atm के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह T2 यू आर यूजिंग दिस वन इन 330 Kelvin। सो एज वी नो द स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज़ 2, सेकेंड वाला T2 हम खुद एज्यूम कर रहे हैं। एंड वॉट वी नीड टू फाइंड V2, दिस V2 फार्मूला आप लगाओगे ये वाला P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। बस सिंपल क्या करना है, इस V2 को इधर रहने दो, P2 इधर ले जाओ, T2 ऊपर ले जाओ और वैल्यूज़ पुट करो। जब वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास ये आ रही है कैलकुलेशन। आप खुद कैलकुलेट करके देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। इसको कैलकुलेट करें आराम से, कोई ऐसा इशू प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी नहीं है, आराम से सुकून से वैल्यूज़। थोड़ा सा फार्मूला मुश्किल नहीं है, लेकिन हो सकता है आप कैलकुलेशन जल्दी में करो तो आपका आंसर गलत हो जाए। तो आपके सामने ही लिखा हुआ है। आई विल सजेस्ट कि अगर आप इस वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इसको कैलकुलेट करके पहले देख लें कि हो क्या रहा है। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ रखेंगे, सारी वैल्यूज़ रखने के बाद मालूम होगा V2। सो एज आई सेड कि इफ़ योर 1 यूनिट इज़ रिप्रेजेंटिंग, they are representing 1 unit in cm³, तो second unit must be in cm³। if they are using this into P1, if they were using P1 into atm, so आप ऑटोमेटिकली P2 जो है वो खुद ही atm वाला लिख दोगे 1 atm।
ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का. सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स. देन वी हैव अ सिग्निफिकेंस ऑफ जनरल गैस इक्वेशन. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जनरल गैस इक्वेशन एक्चुअली? यहाँ छोटा सा एक दो सिग्निफिकेंसेस हैं. एक तो हम विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन what are these things: molecular mass of a gas and density of a gas. How we calculated? Let we start and let we check. First of all, molecular mass of a gas, how do we calculate it? इतना काफ़ी है. Okay, according to general gas equation, PV is equals to nRT. This is the formula. And what is n? N, number of moles. Number of moles we all know that it is equals to mass in gram per molar mass. Mass in gram को we just represent with W and molar mass को हम represent करते हैं M से. So if I put दिस फार्मूला इंस्टेड ऑफ दिस एन, सो अगर मैं करूँगी तो ये आपके पास कुछ ये शक्ल आएगी. ठीक है. एंड इफ़ आई एम आस्किंग यू कि जस्ट एक काम कीजिए, मॉलिक्यूलर मास को यहाँ से कैलकुलेट कर दें या मॉलिक्यूलर मास को अलग कर दें, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल इस एम को उठाकर इधर ले जाएंगे और इस पी को उठा के इनकी जगह रिप्लेस कर देंगे. और यही यहाँ पर किया है, सिंपल यही किया है. एम को इस साइड पे ले गए हैं और पी को दूसरी साइड इनकी तरफ ले आए हैं, तो ये आपके पास आ जाता है एम इज़ इक्वल टू WRT अपॉन PV. दिस इज़ द फर्स्ट significance of a general gas equation. Means you can use this general gas equation to calculate molar mass. Fine, ये आपके पास आ रहा है. सेकेंड पार्ट में दे आर सेइंग कि द सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ जनरल गैस इक्वेशन इज़ डेंसिटी ऑफ अ गैस मालूम कर सकते हैं. अगेन हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? लुक, PV इज इक्वल्स टू nRT एंड अगेन वी आर गोइंग टू पुट द फार्मूला ऑफ n. वो हमने पुट कर दिया. PV इज इक्वल्स टू W अपॉन MRT हमारे पास आ गया. अब देखिए आपने करना क्या है कि आपके पास आप इस जो आपके पास ये था M था, M को उठाकर हम सिर्फ जस्ट M को उठाकर हम P के साथ लेके चले गए. ठीक है. अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. और मास हमारे पास सिंपल मास जो भी है हम यूज़ करेंगे. तो ये जो आपके पास मास है ना, इसको वेट है या मास है, इसको आपने m भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे लिख नहीं रहे क्योंकि स्मॉल m और कैपिटल M में आप कंफ्यूज ना हो जाएं. दैट्स वाई हम इसको w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो m या w. तो इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह अगर मैं d पुट कर दूँ, जो कि यहाँ पे हमने कर दिया है, MP इज़ इक्वल्स टू DRT, तो ये क्या गलत होगा? तो द आंसर इज़ नो, इट इज़ करेक्ट. ठीक है. तो बस ये है, ये किया हमने. मैं फिर रिपीट कर देती हूँ. हमने क्या किया? हमने नंबर ऑफ़ मोल्स वाला फार्मूला लगाया, हमने उसको यहाँ पर इसकी जगह पुट किया और हमने डेंसिटी को, एक्चुअली हम डेंसिटी को एक्सट्रैक्ट आउट करना चाह रहे हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से, तो यहाँ हमने D लगा दिया और यही आ गया MP इज़ इक्वल्स टू DRT. और फिर हम डेंसिटी को अलग कर लेंगे, इस D को यहाँ रहने दें, MP अपॉन RT हो जाएगा. तो ये डेंसिटी का सिग्निफिकेंस आ जाएगा आपके पास. सही है. तो ये छोटे से दो सिग्निफिकेंसेस हैं. इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट M एंड प्लस D. और वो कह रहे हैं कि अगर ये कैलकुलेशन तब होगी जब PV, W एंड T आर नोन. और यहाँ पर आपको रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो नोन होती हैं. वो ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किल सा करके कुछ दे देंगे, वो आपको गिवन होंगी. अब आ जाइए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R पे. अब जो R हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी भी कैलकुलेशंस होती हैं, इनकी भी वैल्यूज़ होती हैं और वो वैल्यूज़ फिक्स. अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लें कि जनरल गैस इक्वेशन की कितनी वैल्यूज़ हैं, जनरल गैस कांस्टेंट की, R की वैल्यूज़ हैं जनाब, यू हैव 3.0821 यूनिट्स. चेक कीजिए. DM³ ATM मोल, लेट मी चेंज द कलर. ओके, ये यूनिट्स हैं. DM³ ATM पर मोल पर केल्विन. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R. सेकेंड में देखिए R की वैल्यू है cm³ टॉर पर मोल पर केल्विन. अच्छा, पर मोल पर केल्विन हर जगह सेम है, ऊपर वाले चेंज हो रहे हैं. थर्ड में देखिए R की वैल्यू इट इज़ 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन. ठीक है. सो 3 है, तो 3 का मतलब हम लोग यहाँ पे वी आर गोइंग टू पुट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. सबसे पहले तो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट फॉर द यूनिट व्हेन यू हैव अ वॉल्यूम, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग वॉल्यूम इन DM³ एंड प्रेशर इज़ इन ATM. This is the formula. PV is equals to nRT, and what we are going to calculate? We are going to calculate R. So how the formula we can write? PV is equals to nRT है. आपने R को अलग करना है, R को अलग करना है तो फार्मूला आपके पास होगा PV अपॉन NT, ये होगा. ठीक है.
ये फार्मूला है, हर जगह यही फार्मूला यूज़ होगा। और अगर आपके पास n भी 1 है तो फार्मूला क्या बच जाएगा, फार्मूला आपका बच जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ, R इज़ इक्वल्स टू PV/T। ये बेसिकली 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, n तो आपका हर जगह 1 ही है। अब आपने करना क्या है, एक दफ़ा वॉल्यूम आपने रखना है dm³ एज़ इट इज़ शोन हेयर, प्रेशर आपने रखना है 180 m और टेम्परेचर आपका सेम रहेगा 273 केल्विन। हर दफ़ा चेंज आपने क्या करना है, प्रेशर का यूनिट चेंज करना है और वॉल्यूम का यूनिट चेंज करना है। हेयर वी हैव यूज 22.4 एंड प्रेशर इज़ इन 180 m एंड वी हैव जस्ट वी विल जस्ट पुट द फार्मूला हेयर एंड लुक, volume 22.4 and multiply with pressure 180 m, this is the number of mole 1, this and temperature 273, so the answer would be 0.0821। ये वैल्यू आपको याद करनी है, ये वाली, ठीक है। ये सारी तीनों आर की वैल्यूज़ याद करनी चाहिए, होनी चाहिए आपको, बिकॉज़ हमें न्यूमेरिकल्स करने आगे आप देखेंगे, मैं आप भी बताती हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये देख लीजिए, ये आर की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखते हैं, इन द नेक्स्ट पार्ट what we will do, we are simply going to put different values of pressure. What they are saying, if pressure is measured in mm of mercury or torr and v is in cm cube, v is in cm cube कैसे, v की वैल्यू होगी जैसे सिंपल 1 dm³ कितने cm³ के बराबर होता है 1000, सो 22.4 को कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, हम डायरेक्ट क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि आपने वॉल्यूम cm³ में रखना है, 22400 cm³ होगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और mm ऑफ मरकरी या जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो 760 आएगी, ठीक है। और बाकी चीज़ें सेम है, आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ है, आई विल सजेस्ट कि आप फार्मूला के अंदर पुट करके करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो, आपको नज़र समझ में आए। सो आपको वो कह रहे हैं कि इतनी वैल्यू आती है आर की 62400 cm³ टॉर पर मोल पर केल्विन। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट पार्ट में कर रहे हैं, इफ़ इन SI यूनिट प्रेशर इज़ एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर एंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, एंड लुक वॉल्यूम इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब एंड द वैल्यू इज़ दिस एंड प्रेशर, these both are confirmed, n is equals to 1 mole and this, and we will put in the formula, and when we will put in the formula, so the answer would be 8.314। इन्होंने यहाँ नहीं लिखा, नीचे लिखा है, तो नीचे चले जाते हैं, 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। सो वी नो दैट द 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल, सो यू कैन रिप्रेजेंट दिस न्यूटन मीटर अकॉर्डिंग टू जूल, एंड दिस इज़ अगेन हमें यूज़ करनी है वैल्यू, ठीक है, आर जनरल गैस इक्वेशन की। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल आपको करा देती हूँ, उसके बाद डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ, बाकी बुक की एग्जांपल आप खुद स्टार्ट करें, आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी शेयर किए हुए, उसको देखें, इसको ज़रा देख लें। ये न्यूमेरिकल है, 4 ग्राम्स ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस, डेटा बनाते रहें, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको कन्वर्ट कीजिए, एंड अ प्रेशर ऑफ 2.5 ATM ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 2.46 dm³, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। वो आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, और आपको पता है कि आपके पास कौन सी चीज़ें गिवन है, आपको 4 ग्राम्स गिवन है, ठीक है, और आपको टेम्परेचर गिवन है, आपको प्रेशर गिवन है, और आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, PV इज़ इक्वल्स टू nRT, बट n इज़ नॉट गिवन, लेकिन आपको R पूछ रहे हैं और आपको बाकी 3 चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन n गिवन नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको 4 ग्राम्स ऑफ मीथेन दिया हुआ है। तो आपने पता है करना क्या है, आपने पहले n मालूम करना है। n कैसे मालूम करोगे, 4 डिवाइडेड विद मोलर मास ऑफ मीथेन, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए 4 डिवाइडेड विद मोलर मास ऑफ मीथेन 1/4 मोल्स आ गए हैं, ठीक है, 0.25 आंसर होगा। बाकी आपने कन्वर्जन करके सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है, और जब आप फार्मूला के अंदर पुट करोगे ना तो आपका आंसर आना चाहिए 0.0821 dm³। ये आप कैलकुलेट कीजिए, फार्मूला मतलब प्रैक्टिस है, वही चीज़ है, बस सिंपल इसके अंदर चेंजिंग क्या थी कि आपको n गिवन नहीं था, n की जगह आपको उन्होंने n की चीज़ें दे दी थी, मोल्स कैलकुलेट करने को दे दिए थे। तो आप लोग ये कीजिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ओपन योर बुक्स, choose the examples and start solving them. They are very easy, although numerical seems के थोड़े होते हैं, लेकिन first year chemistry is all about numerical and this 4th chapter is all about numericals, ठीक है। So that's all about today. Allah Hafiz.